everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of our chapter is the Northern Plains. So let's begin the chapter. Chapter 4, the Northern Plains. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn occasion, features of the plains, states in the Northern Plains of India. So in this chapter we will going to cover the topic location, स्टेट्स कौन कौन सी हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में और उसके फीचर्स क्या होते हैं प्लेन्स के. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. बिल्ड अप, rearrange the letters to get the names of some cities located in the plains. Write the names in the blanks. Now we have to rearrange these letters to form a name of a city. So let's start. Number 1 is Meerut. Number 2 is Guwahati. Number 3 is Chennai. Number 4, Kolkata. Number 5, Lucknow. And the number 6 is your Agra. Now let's start. If the northern mountains are on the crown of India, the northern plains are the face of the country. So northern mountains जो हिमालयाज है वो हमारी कंट्री का क्या है, इंडिया का क्राउन है, ताज है. उसी तरीके से जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कंट्री का फेस है. लोकेशन. The northern plains lie between the Himalayas and the southern plateaus. जो northern plains हैं वो किसके बीच में lie करते हैं, Himalayas and southern plateau. The flat and level northern plains stretch from Punjab in the west to Assam in the east. जो flat और level northern plains हैं they stretch from वो पंजाब से, west में पंजाब है वहां से, to Assam in the east तक फैले हुए हैं. They cover almost the whole of Punjab, Haryana, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi, parts of Bihar and Assam. तो वो ऑलमोस्ट पूरा पंजाब उन्होंने कवर करा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, यूपी, दिल्ली, सब पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम. The northern plains are very fertile plains which in alluvial soil in most parts. तो northern plains जो है वो fertile plains है, alluvial soil में बहुत rich है. The important cities in the northern plains are Amritsar, Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, Prayagraj, Varanasi, Patna, Kolkata, Guwahati and Chandigarh. जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में वो है आपकी अमृतसर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, चंडीगढ़, वाराणसी. फीचर्स ऑफ द प्लेन्स. Northern plains stretch from about 2400 kilometers from Punjab to Assam. Their width ranges between 150 kilometer to 300 kilometer, varying in different regions. तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो स्ट्रेच होते हैं कहाँ से कहाँ तक, 2400 किलोमीटर्स पंजाब से असम, और उनकी जो विड्थ है वो रेंज करती है बिटवीन 150 किलोमीटर्स टू 300 किलोमीटर. अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट होता है. की फीचर इंक्लूड northern plains are drained by 3 big rivers, the Ganges, the Indus and Brahmaputra, along with their tributaries. Northern plains जो है they are drained by 3 big rivers से drained होते हैं, the Ganges, Indus and Brahmaputra. These rivers carry water throughout the year. They also bring with them broken pieces of rough sand and silt. The fine silt deposited by the rivers is called alluvium. Northern plains जो होते हैं they are drained 3 big rivers में जाकर वो drain होते हैं. सबसे पहले Ganges, then Indus and Brahmaputra. ये 3 rivers हैं major rivers. ये जो rivers होते हैं ये पूरे साल water को carry out करते हैं और अपने साथ साथ कुछ broken rocks के pieces भी लेके आते हैं. इनके साथ साथ मिट्टी भी आती है, इनके साथ पत्थर भी आते हैं. तो जो फाइन सिल्ट होती है वो अच्छी चीज होती है, अच्छी जो क्वालिटी होती है उसकी, वो रिवर के आसपास डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम एलुवियम कहते हैं. द प्लेन्स एंजॉय द बेनिफिट ऑफ पेरेनियल रिवर्स एंड गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, हेंस दे आर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस एंड राइटली कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. जो है ये प्लेन्स एंजॉय करते हैं बेनिफिट ऑफ पेरेनियल रिवर्स एंड गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ये रिवर्स हमेशा रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं. एंड सेकेंड थिंग, अच्छी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है उसको. हेंस ये सूटेबल होते हैं क्रॉप्स जैसे कि वीट के लिए, राइस के लिए, और इनको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. द प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड हैव एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज. और ये जो प्लेन्स एरियाज होते हैं ये इनमें पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर रोडवेज और रेलवेज का नेटवर्क भी बहुत अच्छा होता है. डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. The 3 important river basins in India. 3 important river basin है इंडिया में. Number 1 is Satluj river basin.
Number 2, Ganga River Basin, and number 3 is Brahmaputra Basin. Number 1, Satluj River Basin. River Satluj originates in Tibet, Beas as its main tributary. तो रिवर सतलुज कहाँ से originate होता है? तिब्बत से, और ब्यास उसकी main tributary है. Punjab and Haryana are part of Satluj River Basin. The Bhakra Nangal Dam built across the Satluj River generates electricity and provides water for irrigation. पंजाब और हरियाणा जो है वो किसके पार्ट हैं? दे आर पार्ट्स ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन के, और जो भाखरा नंगल डैम है वो इस सतलुज रिवर के अक्रॉस ही बनाया गया है, एंड इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. फैक्ट ट्रेजर. इन द महाभारत द सतलुज रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज द नेम सताद्री व्हिच मींस 100 स्ट्रीम्स. जो महाभारत है हमारी उसमें अकॉर्डिंग सतलुज रिवर को डिस्क्राइब किया गया है किस नाम से? सताद्री. सताद्री का मतलब होता है 100 streams. Next comes the Ganga River Basin. River Ganga originates from Gangotri Glacier in the Himalayas. Is its main tributary Yamuna. अब गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? हिमालय से ही हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है, और उसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना. द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ तक फ्लो कर रही हैं? झारखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सब जगह पर आपको गंगा नदी मिलेगी. इन बिहार इट स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस. अब बिहार में जाकर ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. वन ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश एंड इज कॉल्ड पद्मा. पहली ब्रांच जो है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम पद्मा है. इट जॉइंस ब्रह्मपुत्र, वहां पर जाके वो ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है. एंड द अदर ब्रांच फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इज कॉल्ड हुगली. हुगली रिवर के बारे में अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो जो अदर ब्रांच है वो कहाँ फ्लो करती है? वेस्ट बंगाल से होती हुई, और वो हुगली उसको कहते हैं. देन कम्स योर ब्रह्मपुत्र बेसिन. रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो. ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होता है तिब्बत में, जहाँ पर इसको बुलाया जाता है सांगपो. इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश. ये इंडिया में एंटर होता है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, और असम से फ्लो होता हुआ इट एंटर बांग्लादेश. द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा rivers from the largest delta in the world before falling into the Bay of Bengal. This is the Sundarbans delta. अब जो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर है हमारी, ये सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है. बे ऑफ बंगाल इनका डेस्टिनेशन होता है आखिरी, वहां पर फॉल करने से पहले जो वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, दैट इज ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा वो फॉर्म करती हैं, और उसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. All the 3 basins, that is Satluj River Basin, the Ganga River Basin and the Brahmaputra Basin. It starts in Tibet. It starts from the Gangotri Glacier. It starts in Tibet. Beas is its main tributary. River Yamuna is its main tributary. Forms the largest delta called the Sundarban Delta, and Punjab, Haryana are the part of Satluj Basin. Now comes the states in the northern plains of India. कौन-कौन सी states है? Number 1 comes your Punjab. The word Punjab means the land of 5 rivers. पंजाब का मतलब है कि जहाँ 5 नदियों का मिलन होता है. In 1947, the western part of Punjab became the part of Pakistan. जब 1947 मतलब जब आज़ादी हुई थी, उस टाइम पर जो वेस्टर्न पार्ट था पंजाब का वो पाकिस्तान बन गया था, उसका हिस्सा. Now only 3 rivers flow through the Indian part of Punjab, which are Beas River, Ravi and Satluj. तो अब जब वो डिवाइडेशन होने के बाद जो वो हिस्सा जो था वो पाकिस्तान में चला गया. 5 में से 2 रिवर उधर की साइड रह गई, और 3 रिवर जो है वो इंडिया वाले पार्ट ऑफ पंजाब में आज भी फ्लो करती है, जिसका नाम है ब्यास, रवि और सतलुज. वीट, राइस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन. तो इस रीजन की मेन क्रॉप्स हैं वीट, राइस एंड शुगर केन, ऑयल सीड्स. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प पंजाब बिकम प्रॉस्परस, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही पंजाब प्रॉस्पर कर रहा है. पंजाबी एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर. यहाँ पे सबसे ज़्यादा पंजाबी या हिंदी बोली जाती है. मैनी इंडस्ट्रीज हैव सेट अप इन पंजाब बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल फ्रॉम द भाखरा डैम. यहाँ पे जो भाखरा डैम बनाया गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी सप्लाई होती है यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होती जा रही है. लुधियाना इज फेमस फॉर इट्स हॉइजरी एंड वुलन गुड्स. लुधियाना में सबसे ज़्यादा गर्म कपड़ा बनता है. वुलन क्लोथ्स जो है ज़्यादातर लोग लुधियाना से खरीदते हैं, बहुत ही अच्छे रेट्स में और बहुत ही बल्क में वहाँ से खरीदा जाता है, और वहाँ बनता है.
Jalandhar is well known for its sports goods. Jalandhar sports के आइटम के लिए फेमस है. अमृतसर एंड धरीवाल हैव मिल्स दैट मेक वुलन प्रोडक्ट्स. अमृतसर और धरीवाल जो जगह है वहाँ पर पंजाब में, वहाँ पर बड़ी बड़ी मिल्स हैं वुलन प्रोडक्ट्स की. अमृतसर पूल ऑफ नेक्टर इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स गोल्डन टेम्पल हरबंदर साहब. तो अमृतसर फेमस है गोल्डन टेम्पल के लिए. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव विजिट देयर. इट इज़ द होलीस्ट प्लेस फॉर सिक्स की बहुत ही फेमस और होली प्लेस है. द मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब आर गुरुपुरब, बैसाखी, होली, लोहड़ी, दिवाली एंड दशहरा. तो पंजाब के मेन फेस्टिवल हैं गुरुपुरब, बैसाखी, होली, लोहड़ी, दिवाली एंड दशहरा. भंगड़ा एंड गिद्दा आर फोक डांसेस ऑफ पंजाब. women wear सलवार कमीज, men wear लुंगी कुर्ता. तो भांगड़ा और गिद्दा वहाँ के लोगों का फोक डांस है एंड वहाँ के लोग सलवार कमीज पहनते हैं एंड जो मेन है दे वियर दी लुंगी एंड कुर्ता. Fact treasure: a smaller river that flows into a bigger river is called the tributary of the larger river. तो कोई भी स्मॉल, कोई भी छोटी रिवर जो बड़ी रिवर में फ्लो कर रही है उसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है ऑफ द लार्जर रिवर. कि अगर कोई छोटी सी नदी है और वो बड़ी नदी में जाकर मिल रही है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है बड़ी रिवर की. देन कम्स दी हरियाणा. हरियाणा मीन्स द एडबॉर्ड ऑफ गॉड. हरियाणा को कहते हैं बॉर्ड ऑफ गॉड. इट इज़ टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पंजाब. पीपल स्पीक हरियाणवी, हिंदी एंड पंजाबी है. तो इट इज़ टूवर्ड्स साउथ ऑफ पंजाब आप कह सकते हो. वहाँ भी लोग पंजाबी बोल लेते हैं पर थोड़ी खड़ी बोली होती है वहाँ की. वहाँ के लोग हरियाणवी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं. फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस हेयर. यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन लोगों का है फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग. फार्मिंग जो किसान होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग, या डेयरी फार्मिंग होती है. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस एंड शुगर केन. ज़्यादातर यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं शुगर केन, पल्सेस, बाजरा. इन करनाल देयर इज अ बिग डेयरी फार्म. करनाल में बहुत ही बड़ा डेयरी फार्म है. हेयर फार्मर्स आर टॉट हाउ टू लुक आफ्टर स्पेशल टाइप्स ऑफ कैटल विच गिव देम प्लेंटी ऑफ मिल्क. तो यहाँ पे फार्मर्स को बताया जाता है कि कैसे अपने कैटल्स को ध्यान रखना है, कैटल रियरिंग कैसे होती है विच गिव, जो उन्हें प्लेंटी ऑफ मिल्क प्रोवाइड करे. एवरी ईयर इन हिसार अ बिग कैटल फेयर इज हेल्ड. अब हर साल हिसार जो जगह है वहाँ पे एक फेयर, मेला टाइप लगता है कैटल का. तो वहाँ पे कैटल्स खरीदे जाते हैं. जैसे इन सम पीपल comes and purchase the cattle like cows also, buffaloes also are there, sheep are there. Farmers from all over the state come to buy and sell cattle. तो फार्मर्स जो है वो सारी स्टेट से आते हैं और खरीदते हैं और बेचते हैं कैटल्स को. सोनीपत हैज़ मेनी बाईसाइकिल फैक्ट्रीज. सोनीपत में बहुत सारी बाईसाइकिल फैक्ट्रीज हैं. पानीपत इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम टेक्सटाइल. पानीपत जो हैंडलूम टेक्सटाइल के लिए फेमस है. गुरुग्राम इज फेमस फॉर इट्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. गुरुग्राम, गुड़गांव फेमस है ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए. कैन यू नेम द फेमस कार मैन्युफैक्चर्ड इन गुरुग्राम? वुमेन वेयर घाघरा कुर्ता वाइल मैन वेयर धोती कुर्ता. तो कौन कौन से फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग है गुरुग्राम में? इफ यू नो देन यू कैन फाइंड इट आउट. So, and also the women here, they used to wear the ghagra and kurta and men wear the dhoti and kurta. Delhi. New Delhi is the capital of India. India की capital है New Delhi. It is situated on the banks of Yamuna River. तो सबसे कौन से banks पे, किस river के bank पे situated है? Yamuna River के banks पे situated है. It is surrounded by Haryana on 3 sides and on the eastern side it shares its border with उत्तर प्रदेश. तो उसके 3 साइड से तो वो हरियाणा से अटैच है और ईस्टर्न साइड से वो अटैच है, शेयर करती है अपने बॉर्डर को उत्तर प्रदेश से. इट इज द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट है. मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर देयर. पार्लियामेंट वहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर है. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव हेयर. बहुत सारे रीजन्स के लोग यहाँ पर रहते हैं. बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं. All major festivals are celebrated here. यहाँ सारे major festivals celebrate होते हैं. दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस. Delhi has many historical monuments like Qutub Minar, Jama Masjid, Red Fort, Lotus Temple, Jantar Mantar, India Gate and Gurdwara शीशगंज. तो ये फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं दिल्ली की जहाँ पर लोग विजिट करने आते हैं. Then comes the उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश is the most populous state in India. सबसे ज़्यादा populated state है उत्तर प्रदेश. It lies to the west of Bihar
बिहार की वेस्ट पे है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। Soil here is very fertile because of the alluvium brought by the गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा जो डिफरेंट रिवर्स हैं यहाँ पर फ्लो करती हैं, उन रिवर्स के थ्रू जो सॉइल आ जाती है, वो सॉइल जो इसमें आती यहाँ पर है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज है। मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड आर व्हीट, राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेज एंड शुगर केन। सो ज़्यादातर क्रॉप्स जो यहाँ प्रोड्यूस होती हैं वो है व्हीट, राइस, ऑयल सीड्स। अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ of Uttar Pradesh are Varanasi, Prayagraj, formerly Allahabad, Kanpur, Meerut, Mathura, Agra. These are the other important cities जो यूपी के अंदर हैं। कानपुर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस और इंडस्ट्रियल सिटी है कानपुर। द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। और ताजमहल कहाँ लोकेटेड है? आगरा में। आगरा इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। द ट्रेडिशनल ड्रेस इज साड़ी फॉर वेमेन एंड कुर्ता पजामा फॉर मैन। तो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस वेमेन की है साड़ी, ज़्यादातर वेमेन जो है साड़ी पहनना पसंद करती हैं, मैन यहाँ पर कुर्ता पजामा पहनते हैं। हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर। द मेन फेस्टिवल्स आर दिवाली, होली, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस। तो हिंदी एंड उर्दू जो है वो मेन लैंग्वेजेस है जो यहाँ पर बोली जाती हैं, और द मेन फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं होली, दिवाली, दशहरा, ईद। योर वाई इज द लैंड ऑफ नर्दर्न प्लेन वेरी फर्टाइल। नर्दर्न प्लेन का जो लैंड होता है वो इतना फर्टाइल क्यों होता है? क्योंकि जो गंगा रिवर से जो मिट्टी आती है वो फर्टाइल होती है। एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल सॉइल। देन कम्स बिहार। बिहार हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन हिस्ट्री। इट इज द लैंड ऑफ बुद्धा एंड महावीर। तो लॉर्ड बुद्धा और महावीर की लैंड है ये। इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू बिहार। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार से ही बिलोंग करते। बिहार इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बिहार उत्तर प्रदेश की ईस्ट पर लोकेटेड है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इसकी कैपिटल है। राइस, व्हीट, शुगर केन एंड पल्सेस आर द मेन क्रॉप्स। राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन मेन क्रॉप्स हैं। हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन बिहार। हिंदी और उर्दू यहाँ पर मेन लैंग्वेजेस हैं जो उसमें लोग बात करते हैं। मेन फेस्टिवल्स ऑफ बिहार आर छठ पूजा, दिवाली, होली, दशहरा एंड दुर्गा पूजा। यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। कोसी रिवर इज called the sorrow of Bihar. This is shown the picture of the कोसी रिवर दिखाई हुई है यहाँ पर। कोसी रिवर जो है वहाँ पे फ्लो करती है बिहार में, इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। झारखंड, कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। कैपिटल झारखंड की रांची। धनबाद, झरिया, बोकारो आर द इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन झारखंड के इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं, गाँव हैं। झारखंड इज वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, कोल एंड बॉक्साइट के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल इंडिया की ईस्ट पर है। लैंड हेयर इज वेरी फर्टाइल ड्यू टू द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की वजह से यहाँ का लैंड भी फर्टाइल है, तो क्रॉप्स ग्रो के लिए बहुत अच्छा है। कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। कोलकाता इसकी कैपिटल है। विक्टोरिया मेमोरियल, अ मॉन्यूमेंट ऑफ टू क्वीन विक्टोरिया वाज बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल बाय द ब्रिटिश। यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल, जो क्वीन विक्टोरिया के लिए बनाया गया था, वाइट मार्बल का ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। बंगाली इज द मेन लैंग्वेज। राइस एंड जूट सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रो होते हैं और बंगाली यहाँ की मेन। Assam is located in the northeast of India. Rice and jute are the main crops. Assam is famous for its tea. तो असम नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया की। राइस एंड जूट वहाँ की मेन क्रॉप्स है। टी भी और टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है असम। असम हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। असम में पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स है बहुत ज़्यादा। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। गुवाहाटी इज इट्स लार्जेस्ट सिटी। गुवाहाटी उसकी लार्जेस्ट सिटी है। Assamese is the main language spoken and Bihu is the main festival. Assamese वहाँ की famous language है और Bihu उनका main festival. काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम इज फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोसेरस। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में बनाया गया है वो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस। Let's do words to remember. Number 1, alluvium, a fine sand and silt deposited by the rivers. River basin, the area watered by a river and its tributary. Tributary is a small river or a stream that flows into a large river. And delta is a flat land where a river deposits sediments before falling into the sea. Now let us recall the northern plains are face of the country. Northern plains lie between the Himalayas and the southern plateaus. The river Satluj originates in Tibet. Punjab and Haryana are part of Satluj River basin. Now let's do the think and answer. Tick the correct option. Punjab and Haryana are the part of
dash river basin, that is Satluj. Assam is in the dash of India, northeast. The land of Bengal is very fertile due to Ganga Brahmaputra delta. Dash is the land of Buddha and Mahavira, that is Bihar. Fill in the blanks using the words given in the box. River Satluj originates in Tibet. The Bhakra Nangal Dam is built across the river Satluj. One branch enters Bangladesh and is called Padma. The word Punjab means the land of five rivers. Dash has many bicycle factories, that is Sonipat. Now let's pick the correct and cross the incorrect statement. The capital of Punjab is Dispur, false. The river Brahmaputra originates in Tibet, is true. Uttar Pradesh is thickly populated state, is false. The Ganga originates from Gangotri Glacier, correct. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.